Today we will discuss process management. In our previous class, we have discussed the concept of operating system. Today we will discuss the concept of process and process management. First of all, we have to clear two words. Number one is process and another is program. To confusing one, what is process and what is a program? Actually, whenever we write any program, suppose we are writing a program in Java or C++ or Python. So, after compilation, if the program is error free, then we will get some output. After compilation, we can create suppose a file related program. So what will happen? File related program. Suppose our program is take some input and calculate on the variable and then print it. So whenever the program in its execution position, then it is known as process. A program can execute several times. So different process will created for the same program. Now look at the diagram. Here we can see that in the left box we have written a program. Suppose we are handling file related program. Here we have given only the pseudocode. So file related program, and there is a while loop and something different lines, and lastly a print statement. What will happen? Look at the right hand side. All the informations are stored in hard disk or any memory devices. Then the CPU, by the helping of OS, operate each and every line, and after compilation, after execution, we will get the output in the printer. So whenever this program is in its execution state, then it is a process. So we can say that look at the top of our page. A program is a passive entity and that does not perform any actions by itself. ठीक है ना? नोट पे देखो. It has to be executed if the action it calls for are to take place. Or process is an execution of a program, so it actually performs the action specified in a program. So our logic, our different statement of coding, we want to execute, we want to get some output. So it actually performs the action specified in a program. The operating system shares the CPU among process. I think process and program is very clear. Here already I discussed that portions are written in this lower part. How a program converted into a process. Now, what is the difference? There are so many differences. The question, straightforward questions will ask, write the difference between process and program. Actually, process is an active entity, whereas a program is a passive entity. In program, there are so many algorithms expressed in programming language. But a process is a expression in assembly language. So we can conclude that
we understand the difference between process and program, and there are so many differences. Please read it. I think it will be clear to all. If any doubt, you can ask anytime. Now, how the kernel? Already we have discussed what is kernel. Kernel is the heart of the operating system. All the instructions, all the performance, all the management of CPU related tasks, all are maintained by OS. That means kernel. So, functions of the kernel for controlling the process. How a kernel control it. First one, look at the diagram. First is event, then context set, then event handling, then scheduling, then dispatching, and lastly exit from kernel. बात क्या है इसमें? इवेंट क्या है? Actually, event means whenever we give any instruction, whenever we want to get any output by giving any instruction, known as event. So after getting the event, the context saved in the memory. Context means the overall programming part by which we will get the output. Save in the context. Context saved not only the programming part, it handles so many memory registers, memory address, where from the value of data we will get, and कहाँ कहाँ वो डाटा है, कहाँ कहाँ वेरिएबल है, और प्रोसेस खुद एक मेमोरी पे जगह लेता है और जो प्रोग्राम भी एक मेमोरी पे जगह लेता है, ये सब कॉन्टेक्स्ट सेव में रहता है. उसके बाद क्या होता है? इवेंट हैंडलिंग होता है. इवेंट जो इवेंट आया उसके हिसाब से हैंडलिंग होगा. देन क्या आया? शेड्यूलिंग. शेड्यूल का मतलब एक प्रोसेस एक मशीन पे सिंगल भी चल रहा है ऐसा तो होता नहीं है ना, बहुत सारी प्रोसेस एक साथ चलता है. देयर आर सो मेनी प्रोसेस आर एग्जीक्यूटिंग साइमल्टेनियसली. सो शेड्यूलिंग जरूरी है. कौन सा प्रोसेस आगे जाएगा, कौन सा प्रोसेस बाद में जाएगा, वो डिसाइड करने के बाद वो डिस्पैचिंग लेवल में चला जाएगा. अगर डिस्पैचिंग हो गया मतलब प्रोसेस ख़त्म, तो एग्जिट फ्रॉम कर्नेल, और कर्नेल से बाहर चला जाएगा. सो ये जो कर्नेल का स्टेप है फॉर कंट्रोलिंग प्रोसेस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. नाउ लुक, द कंटेक्स्ट सेव मतलब क्या है? The saving CPU state and information concerning resources of the process and whose operation is interrupted. इंटरप्ट का मतलब वही है कि एक प्रोसेस पूरा ख़त्म हो जाएगा ऐसा होता नहीं है. एक प्रोसेस के पार्शियल पार्ट ख़त्म होता है और उसके बाद दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होता है, लेकिन वो जो पार्शियल ख़त्म हुआ है ना, वो कभी ना कभी शेड्यूलिंग में आएगा, तो उसका जो डिटेल्स है वो तो कंटेक्स्ट में सेव होना ही चाहिए. ऐसा कभी होता नहीं है कि एक ही प्रोसेस चलता है वो ख़त्म होने के बाद दूसरा आएगा. ऐसा होने से सीपीयू डिले हो जाएगा, स्लो हो जाएगा. ऐसा होता नहीं है. होता है कि सभी को मौका मिलता है. और इवेंट हैंडलिंग तो मैंने अभी बोला है कि वो जो इंटरप्ट है कि कोई के प्रोसेस का कोई अगर रिक्वेस्ट आया, वो सब इवेंट हैंडलिंग में चला जाता है. और फिर क्या है? शेड्यूलिंग सिलेक्शन. अभी बोला कि प्रोसेस का जो शेड्यूलिंग है सीपीयू टिक करता है. लास्ट में डिस्पैचिंग, और ये इसी तरह से प्रोसेस का पूरा एक प्रोसेस ख़त्म होता है. एक प्रोसेस, उसके बाद दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस, ऐसे कि एन किस्म का प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है. हम लोग कभी दिक्कत में पड़ते नहीं हैं क्योंकि ये ओएस का काम है, ओएस हैंडल करता है. नाउ कम टू द पॉइंट, प्रोसेस लाइफ साइकिल. नाउ व्हाट इज प्रोसेस लाइफ साइकिल? देखो, एक प्रोसेस जब पैदा होता है, मतलब एक प्रोसेस जब हम लोग शुरू करते हैं, whenever we start a new process, whenever we give instructions to start new process,
we can give instructions or operating system automatically take a process in its execution because operating system require so many processes for its internal purpose. So whenever a process is ready to execute, then it is known as the new state. न्यू स्टेट से वो कहाँ जाएगा? इट कम्स फ्रॉम न्यू स्टेट टू रेडी स्टेट. दैट मीन्स प्रोसेस एडमिटेड इन टू रेडी स्टेट. रेडी स्टेट से देखो ब्लू वाला जो है वो ब्लू वाला मतलब वो रनिंग स्टेट है. मतलब रेडी स्टेट से नॉर्मली क्या होता है कि रनिंग स्टेट में चला जाएगा, वो उसका काम करेगा, और देखो वायलेट कलर में जो है वो टर्मिनेटेड, काम ख़त्म, एग्जिट हो जाएगा. लेकिन ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो सिचुएशन होता नहीं है रियली में. इंटरप्ट तो होता ही है क्योंकि बीच बीच में बहुत सारी प्रोसेस आ जाता है. तो इंटरप्ट जब होता है वो इनपुट आउटपुट और इवेंट वेट माना जाता है. वो चला आता है कहाँ? वो जो नीचे वाला है वेटिंग स्टेट में आता है. वेटिंग स्टेट से वो क्या करते हैं कि फिर रेडी स्टेट में जाएगा. कब जाएगा? जब रेडी क्यू में उसका जगह मिलेगा, मतलब चांसेस आएगा. व्हेनेवर द वेटिंग प्रोसेस विल गेट अगेन टू एंटर द प्रोसेस स्टेट, then it will be in again to ready state, and again it can complete, but it may be partially complete, so then we will again in waiting state. ऐसा भी होता है कि कुछ टाइम में कोई प्रोसेस इतना टाइम वेटिंग में ही रह जाता है कि मशीन हैंग हो जाता है. उस टाइम हम क्या करते हैं? हम मशीन को रिबूट करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं. होता है ऐसा, लेकिन रेयर है, ऑल टाइम होता नहीं है. एक्चुअली हम लोग बहुत सारी बीच बीच में बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दे देना कि एक मानो कि एक गेम चल रहा है, एक म्यूज़िक भी चल रहा है, उस टाइम एक डाउनलोड भी चल रहा है, उस टाइम में हम पिन भी दे दिया है, उस टाइम में हमें चाहते हैं कि सीडी से राइट भी करे और पेन ड्राइव भी घुसा दिया है. इतना सारी इंस्ट्रक्शंस ऑल आर ट्रीटेड एज डिफरेंट प्रोसेस. तो हो सकता है कि मशीन्स का स्पीड और मशीन्स का रैम साइज, मशीन्स का जो इंटरनल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अगर परमिट नहीं करते हैं तो प्रोसेस पूरा के लिए वेटिंग स्टेट में ही रह जाता है. तो क्या होता है उस टाइम में? मशीन हैंग कर जाता है, क्योंकि हाँ सभी प्रोसेस को ज़रूरत है. ओएस में बहुत सारी प्रोग्राम है, जैसे कि इसका एक्सटेंशन .dll वाला होता है. .dll वाला प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम का खुद प्रोग्राम है, और एक एक प्रोग्राम एक एक के लिए एक एक टाइम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है. बहुत सारी प्रोग्राम ऐसा होता है कि कॉमन फॉर ऑल, जब से मशीन स्टार्ट होता है ना वो कॉमन फॉर ऑल हो जाता है. तो ठीक है, ये है प्रोसेस का डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट. तो ठीक है, न्यू क्या है ना? द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड. रनिंग मतलब इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड. वेटिंग मतलब वेटिंग फॉर सम इवेंट टू ऑकर, एंड रेडी मीन्स वेटिंग टू बी असाइन टू ए प्रोसेसर, एंड टर्मिनेटेड मीन्स प्रोसेस हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूशन, इसका काम खत्म हुआ है. लास्ट टॉपिक आज जो हम बोलने वाला है वो है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता क्या है? एक्चुअली जब भी कोई प्रोसेस वेटिंग स्टेज में जाता है और न्यू प्रोसेस रेडी क्यू में आ जाता है, तो कौन सा प्रोसेस का कितना पार्ट ख़त्म हुआ है और कितना अभी रिमेनिंग है, ये सब तो नोट होना चाहिए ना. ये सब नोट कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा कि कितना तुम्हारा पार्ट हुआ है, तुम्हें 20% हुआ है कि 50% हुआ है कि 80% हुआ है, क्योंकि उसको फिर मौका मिलता है. बहुत सारी प्रोसेस एक साथ काम करता है ना, मैंने बार बार एक बात बोल रहा हूँ. तो इसके लिए एक सिस्टम मेंटेन होता है, वो है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. देखो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में है क्या? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में है, हम लोग देखते हैं कि प्रोसेस स्टेट है, प्रोसेस नंबर है, प्रोग्राम काउंटर है, रजिस्टर है, मेमोरी लिमिट है, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स है. एक प्रोसेस के अंदर तो बहुत सारी फाइल हो सकता है, तो कितना फाइल अभी ओपन है, कितना फाइल ओपन कितना तक रहेगा, ये सब स्टेटस इसमें रहता है. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रोग्राम नंबर मतलब प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये PID, P कैपिटल
कैपिटल आई डी से माना जाता है, क्योंकि हर प्रोसेस, जितना भी प्रोसेस क्रिएट हो ना, वो सभी को एक यूनिक नंबर मिलता है। हम लोग जब यूनिक्स लैब करेंगे उसमें से हम देखेंगे कि हर प्रोसेस के लिए एक पीआईडी नंबर होता है, और एक प्रोसेस के सब प्रोसेस भी हो सकता है, वो चाइल्ड प्रोसेस माना जाता है। चाइल्ड प्रोसेस का भी एक सब प्रोसेस हो सकता है, इतना मतलब चाइल्ड का चाइल्ड, ऐसा ट्री जैसा प्रोसेस स्ट्रक्चर भी बनता है। ट्री जैसा मतलब ये ग्रैंडफादर है, ये फादर है, उसका चाइल्ड है, उसका, ऐसे प्रोसेस बढ़ता जाता है। तो प्रोसेस स्टेट में क्या होता है कि प्रोसेस आप कौन सा स्टेट में है, अभी अभी जो बोला ना जी, कौन कौन स्टेट है, रेडी स्टेट है, रनिंग स्टेट है, वेटिंग है, टर्मिनेट। तो अभी प्रोसेस का कौन सा स्टेट है वो पीसीबी में रखा जाता है। प्रोसेस नंबर क्या क्या है, और प्रोग्राम काउंटर, ये भी जो आर्किटेक्चर तुम पढ़े हो उसमें तो मालूम ही है, हर टाइम एक प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट करना पड़ता है। और रजिस्टर्स, कौन सा रजिस्टर्स, ये रजिस्टर्स तो इंटरनल जो एक्यूमुलेटर के अंदर जो रजिस्टर होता है उसमें कौन सा रजिस्टर अभी बिजी है, कौन सा रजिस्टर के लिए कौन सा प्रोसेस डिपेंडेंट है, ये सब उसमें रहता है। इसके अलावा सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, मतलब मेमोरी कितना लगेगा, मेमोरी अभी है फिर मेरे पास कितना, या और जो जो फाइल ओपन है। देखो ऐसा होता ही है, हम लोग जब कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड से पहले ना, डाउनलोड से पहले एनी सॉफ्टवेयर, व्हेनेवर वी डाउनलोड एनी सॉफ्टवेयर फ्रॉम whether from it is pen drive or whether from it is ऑनलाइन वेबसाइट, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि वो पहले इट चेक्स वेदर द मेमोरी परमिट्स और नॉट। मोबाइल पे ये देखा जाता है कि तुम्हारा मेमोरी शॉर्टेज है, ये चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, शॉर्टेज है। कंप्यूटर में देखा नहीं जाता, इसलिए कि अभी जो कंप्यूटर हमारा पास है, डेस्कटॉप हो चाहे वो लैपटॉप हो, उसमें बहुत सारी मेमोरी है इसलिए। लेकिन अगर बहुत बढ़िया साइज का सॉफ्टवेयर हम लोग डाउनलोड करें तो मोबाइल पे तो होता ही है, मतलब मेमोरी लिमिट भी पीसीबी ब्लॉक में रखा जाता है। तो आज हम लोग जो जो पढ़े हैं वो हमारा जो सिलेबस है, कोई भी यूनिवर्सिटी का सभी सिलेबस सेम ही है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ रीड डिटेल्स, एंड इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी बाई ओवर फोन, ओवर व्हाट्सएप, तुम फ़ोन कर सकते हो, ठीक है।